Good morning. Let's get started with our next chapter, which is terrestrial ecosystem. We will discuss in great detail about the terrestrial ecosystem. So, first of all, just clarify in your mind that what is terrestrial ecosystem. So, whenever organisms and environment interact on the land, जो भी लैंड से रिलेटेड एनवायरनमेंट में और ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शन होगा या उनका इंटर रिलेशन होगा, वो सारा टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में आ जाएगा. अब टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में आपका माउंटेन इन्वायरमेंटल सिस्टम हो गया, वैली का अपना अलग एक इन्वायरमेंट होगा और उनसे रिलेटेड अलग अलग उनके इकोसिस्टम्स होंगे. हम वही सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे. बट बिफोर understanding about the terrestrial ecosystem and their types, there is one system which is called tundra. What is tundra? Tundra means barren land, बंजर ज़मीन जिसे बोला जाता है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको environmentally activity मिलेगी नहीं, because they are found where environmental conditions are very severe. बहुत ज़्यादा harsh conditions होगा. And there are two types of tundra regions. First is Arctic and the next one is alpine. So if we talk about the distribution of Arctic tundra region, then it is the continuous belt below the polar ice. Polar ice caps के नीचे से जितना भी सारा लेयर जाएगा एंड अबव द ट्री लाइन इन नदर्न हेमिस्फेयर, वो सारा टुंड्रा रीजन होगा. मेनली आपका नदर्न फ्रिंज ऑफ कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, यूरोपियन रशिया हो गया, साइबेरिया हो गया, आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशन, और इन सदर्न पोल में बहुत स्मॉल रीजन है टुंड्रा का और मोस्टली ओशन से कवर है सदर्न रीजन, तो वहाँ ज़्यादा नहीं मिलेगा. देन एल्पाइन टुंड्रा रीजन जो है वो हाई माउंटेन रीजन में आ जाएगा. With respect to your Arctic mountains, mainly in all latitudes you will find the alpine region, and it shows temperature variation between day and night. And if we talk about the flora and fauna, so like typical vegetation अगर हम बात करें Arctic tundra का, तो you will get cotton grass, sedges, dwarf heath, willow. Sometimes these questions asked in your exams: birches, lichens. And we talk about the animals of tundra region. They are reindeer, musk ox, Arctic hare, caribous, lemmings, squirrels, etc. And most of them have a long life. Like example, you can take the Arctic willow. It has a lifespan of 150 to 300 years, and they are protected from chillness by the presence of thick cuticle. They have thick cuticle and the epidermal hair on the skin. And if we talk about the mammals of the tundra region, जो tundra region में आपको mammals मिलेंगे, they have a large body size, small tail, small ear. Why small ear? To avoid loss of heat, कि heat का loss ना हो surface से. Mainly body आपको fur से covered मिलेगा for insulation, कि heat जो है absorb तो हो जाए but it shouldn't be get lost easily. Insects का life cycle बहुत short होता है, बहुत short span of life के लिए होते हैं, and बहुत completely mainly favorable condition होगा, then it will be there, otherwise it won't. Next, if we talk about in terrestrial ecosystem, we came across forest ecosystem. So we talk about the forest ecosystem. It includes different kinds of biotic communities. Like optimum conditions for surviving of the forest can be the temperature, what is the moisture, what kind of moisture is there, what is the maximum or minimum temperature or optimum temperature, and what is the nature of the soil, how the climate vary there, what is the local topography. These all determine that what kind of trees and what kind of distribution of trees will be there, and their abundance, that
is forest vegetation is in abundance or not. And forest can be evergreen, it can be deciduous, and they are distinguished on the basis of leaf, like broad leaved है या needle leaf है, like coniferous. और ये सब मेनली आपको कॉनिफेरस मिल जाएगा टेम्परेट रीजन्स में. फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अगर हम क्लासिफाई करें सो 3 मेजर कैटेगरीज में कर सकते हैं. पहला क्या, कॉनिफेरस. कॉनिफेरस दूसरा हो जाएगा टेम्परेट, एंड थर्ड वन इज योर ट्रॉपिकल. एंड दीज ऑल फॉरेस्ट बायोम्स, इनको ग्रेडियंटली अरेंज करा जाता है नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड में, और यू कैन से फ्रॉम हाई टू लोअर ऑल्टीट्यूड. लोअर ऑल्टीट्यूड में यू विल गेट ट्रॉपिकल, देन यू विल गो टू the upper altitude, you will get temperate, and then if you move on in the upward direction, you'll get coniferous. Next, let's talk about coniferous forests, which is also known as boreal forests. So mainly cold region में होगा, हाई रेनफॉल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट होना चाहिए, और उसमें भी कैसा कि लॉन्ग विंटर्स प्लस शॉर्ट समर्स. समर का जो टाइम पीरियड है दैट विल बी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड शुड बी देयर. एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरियल फॉरेस्ट. मेनली यहाँ पे आपको एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज़ मिल जाएंगी जैसे स्प्रूस, फिर, पाइन एंड मैनी मोर. एंड इन एनिमल्स फॉर एग्जांपल यू विल गेट लाइनेक्स, वॉल्फ, बियर, रेड फॉक्स, पॉर्क्यूपाइन, स्क्विरल. एम्फीबियंस में मेनली आपको हाइला, राना. एंड बोरियल फॉरेस्ट सॉइल में मेनली बहुत थिन पॉडजोल्स होते हैं, एंड दे आर रादर पुअर. बहुत रिच सॉइल नहीं होता है. वाई? क्योंकि रॉक्स का वेदरिंग होता है, एंड स्लोली इन कोल्ड इन्वायरमेंट जब वेदरिंग होता है, बिकॉज द लिटर डिराइव फ्रॉम कॉनिफर निडल, जो लीफ से आपको लिटर मिलेगा वो बहुत स्लोली डिकम्पोज हो गया. अगर वो डिकम्पोजिशन स्लोली हो रहा है that soil will not be very rich in nutrients. तो nutrients में rich नहीं होगी तो बहुत high quality का soil देखने को नहीं मिलता है. ये soils mainly acidic होंगी, mineral deficient होंगी, mineral नहीं मिलेंगे इसमें आपको बहुत ज़्यादा. And why it happens? Because the movement of large amount of water through the soil. बहुत ज़्यादा amount में जो water है वो move करता है soil से, और बिना काउंटर अपवर्ड मूवमेंट के, इवेपोरेशन के. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक कि मिनरल डेफिशिएंट होती है, सॉइल एसिडिक होती है, एंड दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. इज इट द थिंग विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. एंड काउंटर अपवर्ड मूवमेंट होता नहीं है इवेपोरेशन का. तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे कैल्शियम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, पोटेशियम हो, वो सारा लीचिंग का मतलब ही होता है कि जो टॉप लेयर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो या तो पर्कुलेट कर जाए सॉइल के अंदर, या फिर वो रन ऑफ होके वहाँ से ही हट जाए. सो दिस प्रोसेस लीव्स नो एल्कलाइन ओरिएंटेड कैटायन टू काउंटर द ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड को काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, और जो भी आपका लिटर एक्यूमुलेट हुआ है तो मेनली सॉइल एकदम बैरन जैसी होती है. Next thing which we talk about the productivity and community stability, जो बोरियल फॉरेस्ट का होता है वो बहुत कम होता है बाकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखा जाए, क्योंकि एक तो ट्रीज़ ढंग से ग्रो नहीं हो रहे हैं, दूसरा रीजन भी कोल्ड है, फिर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे हैं. तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इसकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करती हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इफ़ वी टॉक अबाउट इज़ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. अगर हम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ब्रॉड लीव्स होंगी,
जो कि अपनी लीव्स भी शेड करेंगी फॉल के टाइम पे, एंड बेयर ओवर विंटर एंड ग्रो न्यू फॉइलेज इन द स्प्रिंग, और स्प्रिंग में न्यू लीव्स आ जाएंगी। प्रिसिपिटेशन यूनिफॉर्मली होता है, रेनफॉल ठीक ठाक मिल जाती है इन्हें। सॉइल जो होती है टेम्परेट फॉरेस्ट की, वो पॉडजोलिक तो होती है बट फेयरली डीप होती है, तो फिर भी आपको यहाँ पे वेजिटेशन और मिल जाएगा। वहीं अगर हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, तो जो कुछ पार्ट्स हैं जैसे मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट हो गया, जहाँ पे वार्म ड्राई समर्स होते हैं एंड कूल मॉइस्ट विंटर्स होते हैं, ऐसा जो क्लाइमेट बनता है दैट इज़ योर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्लाइमेट होगा। एंड कॉमनली इनहेबिटेड बाय लो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रीज़, ज़्यादा ब्रॉड लीफ नहीं होंगी बट एवरग्रीन ट्रीज़ मिलेंगे। अब एवरग्रीन ट्रीज़ का ये मतलब नहीं है कि ट्रीज़ शेड नहीं करेंगी अपनी लीव्स, बिल्कुल वो शेड नहीं करेंगे, बट ये होता है कि सारी लीव्स एक टाइम पे शेड नहीं होती हैं, तो दे विल रिमेन अपीयर लाइक एवरग्रीन। फायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट हैज़र्डस फैक्टर। अब यहाँ पे फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस इकोसिस्टम में, एंड जो अडेप्टेशन होता है प्लांट्स का, दैट इनेबल देम दैट दे विल रीजनरेट क्विकली आफ्टर बीइंग बर्नड। अगर फॉरेस्ट फायर हुआ है तो इनका इकोसिस्टम इस तरीके से अडेप्ट करा हुआ है कि ये क्विकली रीजनरेट कर लेते हैं। वहीं अगर हम टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का बात करें, ये मेनली सीजनैलिटी पे बेस्ड होते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल पे बेस्ड होते हैं। रेनफॉल ज़्यादा होगी, फॉग भी बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। दूसरा, जो बायोटिक डाइवर्सिटी होती है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में, वो ज़्यादा होगी बाकी टेम्परेट फॉरेस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि रेनफॉल हो रहा है दैट मीन्स ग्रीनरी विल बी देयर, एंड इफ़ देयर इज़ ग्रीनरी दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी विल बी देयर। तो जो डाइवर्सिटी मिलेगा आपको प्लांट्स में, एनिमल्स में, इज़ मच लो एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। If we talk about the biodiversity among temperate forest, then tropical rainforest will bear the highest. But if we compare it with the tropical rainforest, then they have a low biodiversity as compared to tropical rainforest. Now let's talk about the tropical rainforest. So if tropical rainforest कहाँ होंगे? इक्वेटर रीजन के आसपास होंगे। Most diverse or rich communities we'll see on the earth. Both temperature और humidity high रहेगा। Annual rainfall 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और mainly generally distribute होती है throughout the year. जो फ्लोरा है, जो वहाँ का प्लांट की स्पीशीज़ हैं, वो भी आपको डाइवर्सिफाइड मिलेंगी। एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन मिलेगा ट्रॉपिकल रेन की वजह से, और स्ट्रैटिफाइड ट्रीज़ मिलेंगे, जैसे एक लेयर, फिर थोड़ी हायर लेयर, फिर हायर लेयर, फिर हायर लेयर, ऐसे करके। लोएस्ट लेयर जो है इज़ एन अंडर स्टोरी ट्रीज़, श्रब्स हो गई, हर्ब्स हो गई, लाइक फर्न्स, पाम्स हो गए। जो सॉइल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो आर रेड लैटसोल्स एंड वेरी थिक। एंड जो रेट है यहाँ पे लीचिंग का, the high rate of leaching makes these soils virtually useless for agricultural purposes. तो लीचिंग की वजह से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ये सॉइल बेकार हो जाती है। बट अगर इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो रैपिड साइक्लिंग जो न्यूट्रिएंट्स की होती है लिटर में, डिकम्पोजिशन की वजह से, तो वो नेचुरल पॉवर्टी जो सॉइल की है, जो सॉइल का टेक्सचर ख़राब हो रहा है, उसको कॉम्पनसेट कर देती है। फिर अंडर ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कई एरियाज़ में। वाई? क्योंकि कैनपीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसकी वजह से जो लैंड एरिया पे जो सन की रेज हैं वो बहुत कम पहुंचती हैं, तो अंडर ग्रोथ जो है हो नहीं पाती है बिकॉज लैक ऑफ सनलाइट एट द ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट कम्स ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। अब सीजनल फॉरेस्ट है मेनली, यानी कि मानसून टाइप का फॉरेस्ट होगा मेनली रीजन्स में जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट सीग्रीगेटेड इनटू प्रोनाउंस्ड वेट एंड ड्राई पीरियड्स की। आधा पीरियड में आपको मतलब वेट सीजन मिलेगा, देन यू विल ऑल्सो गेट द ड्राई सीजन एज वेल। दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट मेनली साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे, वेस्टर्न अफ्रीका में मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल आइलैंड्स में मिल जाएंगे। इसी तरीके से सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज़ होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेनली
जहाँ पे फेयरली हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ देयर बट लेस टेम्परेचर डिफरेंस. विंटर और समर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होगा, देयर यू विल गेट दी सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एपीफाइट्स यहाँ बहुत कॉमन है. एपीफाइट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. एपीफाइट्स क्या है कि ट्री के सहारे वो ऊपर चढ़ के उससे न्यूट्रिएंट लेंगे. एनिमल लाइफ अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल रीजन का, तो इट इज़ वेरी मच सिमिलर देन दैट ऑफ लाइक योर tropical rainforests. Now let's talk about the another ecosystem, which is grassland. If we talk about the grassland ecosystem, so grassland ecosystem is found where the rainfall is 25 to 75 centimeter and it is not enough to support a forest. forest नहीं बन सकता but desert भी नहीं होगा. अब टाइप्स में आ जाएं अगर हम ग्रासलैंड्स के, तो पहला आ जाता है सेमी एरिड. सेमी एरिड यानी कि जैसे जो आपका गुजरात और राजस्थान का एरिया है, अरावलीज को हटा दें, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, पंजाब, टोपोग्राफी इतना अच्छा नहीं मिलेगा. नेक्स्ट यू विल गेट ड्राई सब ह्यूमिड जोन. थर्ड पार्ट इज़ योर मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन. फोर्थ इज़ योर ह्यूमिड माउंटेन रीजन, मेनली बंगाल यूपी की साइड में मिल जाएगा ये. अब जो ग्रासलैंड्स हैं उसमें आपके या तो स्टेपीज़ हैं या सवाना रीजन है. अब मेजर डिफरेंस स्टेपीज़ में क्या है कि जो फॉरेज मिलेगा आपको स्टेपीज़ में वो मेनली वेट सीज़न में ही मिलेगा. अगर वेट सीज़न है तब मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं. बट सवाना में क्या है, यू विल गेट इट थ्रू आउट द ईयर. वेट सीज़न में ज़्यादा मिलेगा बट ड्राई सीज़न में भी यू विल गेट सम. अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आपके डेजर्ट इकोसिस्टम आ जाता है. वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट इकोसिस्टम, इट इज़ डेजर्ट इकोसिस्टम. मेनली उस रीजन में होगा जहाँ पे रेनफॉल कम होगा. कभी कभी हॉट रीजन्स में हो जाता है जहाँ पे रेनफॉल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है या बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो रही है, या ऐसे एरियाज़ जो रेन शैडो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये इस तरीके से मिल जाएगा आपको. क्यों? क्योंकि पानी जो है वो इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होगा. जब पानी अवेलेबल नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा, ट्री कवर नहीं होगा, तो बारिश भी नहीं होगी. अगर हम अडेप्टेशंस देखें कि डेजर्ट इकोसिस्टम में अडेप्टेशंस कैसे होते हैं, तो अगर हम अडेप्टेशंस की बात करें तो मेनली श्रब्स होते हैं क्योंकि पानी की कमी होती है. लीव्स बहुत कम होंगी, या तो साइज़ में बहुत कम होंगी या बिल्कुल ही एब्सेंट होंगी. लीफ और जो स्टेम है वो सक्यूलेंट हो जाती हैं, ये वाटर स्टोरिंग टाइप हो जाती हैं जैसे कैक्टस में होता है. स्टेम्स में क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. रूट सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होगा. क्यों? क्योंकि रूट नीचे सॉइल में अंदर तक पेनिट्रेट करेगी ताकि उसे वाटर और मिनरल्स मिल सके. फिर जो एनिमल्स हैं वहाँ की, उनकी फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाएगी. फास्ट रनर्स हो जाएंगे, नॉक्टर्नल हो जाएंगे क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा हीट होगी. एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं उनके लेग्स लंबे हो जाएंगे. रीज़न कि ग्राउंड लेवल पे हीट बहुत ज़्यादा है, तो उस हीट को एस्केप करने के लिए. लिजर्ड्स मेनली इंसेक्टिवोरस होती हैं, बिना पानी के कई दिन तक रह सकती हैं. हर्बीवोर्स एनिमल्स को सफिशिएंट वाटर जो है वो उनके सीड्स से मिल जाता है जिसे वो खाते हैं. कैमल, शिप ऑफ द डेजर्ट, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकता है बिना वाटर को ड्रिंक किए. मैमल्स एज अ ग्रुप जो है पुअरली अडेप्टेड होते हैं. कुछ स्पेशीज़ हैं बट सेकेंडरीली अडेप्टेड हैं, तो ज़्यादा सही नहीं है. अब कुछ स्पेशीज़ हैं जो नॉक्टर्नल रॉडेंट्स हैं जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं और बिना पानी के काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं. अब इसमें इंडियन डेजर्ट की बात जो है वो हम अलग से करेंगे. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मेजर चंक्स ऑफ द इकोसिस्टम. देन कोल्ड डेजर्ट या टेम्परेट डेजर्ट की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट और टेम्परेट डेजर्ट में आपका लद्दाख, लेह, कारगिल वाला एरिया आ जाता है, या सिप्ती वैली आ जाती है. फिर उत्तरांचल में सिक्किम एरिया आ जाता है. एरिड रीजन होता है. इंडियन मानसून से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि रेन शैडो एरिया में होता है. काफ़ी एरिड कंडीशंस होती हैं. ड्राई एटमॉस्फेयर होता है. टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे होता है. अप्रॉक्सीमेटली लाइक विंटर्स में -50 डिग्री हो जाता है. मानसून बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है. स्नोफॉल बहुत होगा. सॉइल टाइप सैंडी टू लोम सॉइल हो जाएगा. सॉइल का पीएच न्यूट्रल हो जाएगा. सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी. वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगा. विंड एरोजन तो बहुत कॉमन हो जाएगा. So that's how we came across and we have completed our terrestrial ecosystem. In this
There are some points which are left, but I will discuss those points in our next lecture, where I will discuss Indian desert and also the forest report. Thank you.